Hello everyone and welcome to this third lecture of chemical kinetics. In the first two lectures, we looked at how the rate of reaction is measured and how do we specify a rate law. And we also looked at some aspects of order of reaction, differential rate law and integrated rate law for zero order reaction. Now, in this particular lecture, we will look at the derivation of integrated rate law for a first order reaction, and then we will move on to solve some numerical problems on this particular topic. We will conclude this lecture of today by looking at pseudo first order reaction and first order reactions in gaseous phase. Hopefully you are finding this topic interesting. And keep practicing, and trust me, it is one of the most interesting and most scoring topic as far as chemistry of class 12th is concerned. So now let's look at the derivation of integrated rate law for a first order reaction. Now let's derive the integrated rate law for the first order reaction. So again, we will start from the differential form of the rate law, and the differential form of the rate law for the first order reaction is dA by dt is equal to minus Ka. This we had seen in the earlier lecture. Now by rearranging the terms, we will get dA by A is equal to minus K times dt. Now just like we did in the zero order reaction case, we are going to integrate both sides of this equation. Now, before integrating, I would like to tell you the integration of dx by x, because I am not sure if you have already covered the integration part or not. तो अगर हमारा इंटीग्रल हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 upon x को with respect to x, तो इसका इंटीग्रेशन होता है nothing but ln of x, जहां पर ln is natural log या log to the base e. ठीक है, और कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन हमने लास्ट टाइम भी देखा था. कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द वेरिएबल इटसेल्फ. जैसे अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t, तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा कांस्टेंट टर्म टाइम्स t. ठीक है, तो नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स and we are going to do definite integration. तो हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों स्पेसिफाई करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो उसकी इनिशियल लिमिट दे दी हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन विच इज A0 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन विच वी टेक एज 80. राइट साइड में वेरिएबल है टी, तो इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम t. अब जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है दैट इज ऑफ द फॉर्म dx by x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ a, और राइट हैंड साइड कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t. तो अगेन वी स्पेसिफाई द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट. तो ये बन जाएगा आपका ln at माइनस ln a0 विच इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स t. अब ये नेचुरल लॉग है. नाउ इट इज इजियर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log टू द बेस 10. तो अगर हमें किसी नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना हो log टू द बेस 10 में, ठीक है, तो नेचुरल लॉग हम हमेशा डिनोट करते हैं ln से, और log टू द बेस 10 अगर सिंपली log लिखा है तो उसका मतलब है दैट इज टू द बेस 10. तो अगर मेरे को नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आई सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 2.303. तो अगर मैं नेचुरल लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे को log टू द बेस 10 की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो हम वही करते हैं. तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया टू द बेस 10 बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2.303. ओके, तो 2.303 टाइम्स log 80 minus log a0 is equal to minus of kt. So this can be written as
log A0 minus log AT is equal to KT upon 2.303. तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, A0 माइनस AT इज इक्वल टू K टाइम्स T था, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया log of A0 माइनस log of AT इज इक्वल टू KT अपॉन 2.303. तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एंड यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला बाय हार्ट. ओके, नाउ वी विल लुक एट द graphs of concentration versus time and the log of ln of concentration versus time. ठीक है, now concentration versus time graph for a first order reaction is not a straight line. straight line हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर rate of reaction itself is dependent on concentration, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन का रिड्यूस होने का रेट कम होता चला जाएगा. अगर स्ट्रेट लाइन कब होती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ तब होता है जब रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट हो. अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अगर कांस्टेंट होता तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता, जो कि केस है जीरो ऑर्डर के लिए. तो जब हम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती थी डाउनवर्ड स्लोपिंग. स्ट्रेट लाइन इसलिए होती थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट था. इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, राइट. तो जो ग्राफ होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, और इस ग्राफ का स्लोप क्या दिखाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो यहां पर स्लोप बहुत ज्यादा है और यहां पर स्लोप ऑलमोस्ट जीरो हो रहा है. तो किसी भी चीज का ग्राफ जिसका रेट ऑफ चेंज डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली वुड लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है, सिंपली एक ग्राफ दे देंगे और पूछेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, और 80% स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. Remember, concentration versus time graph is a straight line for a zero order reaction. For all other orders, it is not a straight line. ठीक है. Now, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ln of concentration versus time. ठीक. अब ये जो इक्वेशन है, जो हमारी इक्वेशन है ln of AT minus A0 is equal to minus KT, इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं. अब इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ln AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ln ऑफ ln A0, right. Now again let's compare this equation with general equation of straight line, which is y is equal to mx plus c. अगर मैं ln AT को y मान लेता हूं, यानी y एक्सेस पर ln AT प्लॉट करता हूं, जो कि मैं इस ग्राफ में कर रहा हूं, और x एक्सेस पे t प्लॉट करता हूं, जो कि मैं इस ग्राफ में कर रहा हूं. सो बेसिकली दिस बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, यानी ln AT और t के बीच में रिलेशनशिप लीनियर है. ठीक है, फिर से अगर मैं ln AT को y मान लूं और t को x मान लूं, सो दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. देयरफॉर जब मैं ln कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करूंगा, सो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और जिसका स्लोप होगा माइनस ऑफ k, क्योंकि ये क्या हो गया, ये m के बराबर हो गया. ठीक है, ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं ln AT वर्सेस t का. तो एक तरीके से ln AT क्या हो गया, y हो गया, और t क्या हो गया, x हो गया. तो ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की हो गई, जिसका स्लोप हो गया माइनस के, और
जो इंटरसेप्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, ln a0 के बराबर। सो ग्राफ ऑफ ln concentration versus time for a first order reaction is a downward sloping straight line whose slope is equal to minus k, where k is the rate constant. अब कई बार क्वेश्चन में ग्राफ ln ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, नेचुरल लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बजाय दिया जाता है लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी लॉग टू द बेस 10। तो अगर हम उस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं जो कि इस फॉर्म में है, log 80 is equal to minus kt upon 2.303 plus log of a0, तो इस केस में y हो गया आपका log 80 और x हो गया t। तो अगेन ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन बट द स्लोप विल बी minus k upon 2.303 and the intercept will be equal to log of a0। क्लियर है? एक और बार रिपीट करता हूं, अगर हम लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप होगा minus k upon 2.303 और इंटरसेप्ट होगा log of a0। और अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं ln ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी नेचुरल लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, देन ऑल्सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन बट स्लोप हो जाएगा minus k और इंटरसेप्ट हो जाएगा ln ऑफ a0। क्लियर है? ध्यान से समझिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। नाउ लेट्स लुक एट द हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, ln a0 माइनस ln at इज इक्वल टू kt। मैं यहां पर नेचुरल लॉग के टर्म में कर रहा हूं, डेरिवेशन इजी है, उसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं log टू द बेस 10 के फॉर्म में। तो अगर मैं हाफ लाइफ के लिए टाइम पीरियड निकालना चाह रहा हूं तो हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ इज दैट टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच concentration of reactant becomes half of initial concentration। तो बेसिकली AT किसके बराबर हो गया? A0 by 2, half of initial concentration। So AT becomes A0 by 2। तो मैं AT की जगह डाल देता हूं A0 by 2, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी ln A0 minus ln A0 by 2 is equal to k t half। t half से मेरा मतलब है हाफ लाइफ पीरियड। तो ln A0 माइनस ln A0 2 हो जाएगा बेसिकली इक्वल टू ln 2 विच इज इक्वल टू k t half। तो t half कितना हो गया? ln 2 by k। ln 2 की वैल्यू होती है 0.693, तो t half का या हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला हो गया 0.693 अपॉन k। क्लियर है? हाफ लाइफ का टाइम पीरियड, हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया 0.693 अपॉन k। हाँ, एक चीज जो शायद आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि ln A0 माइनस ln A0 by 2 से मैं ln 2 पर कैसे पहुंच गया। ओके, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि लॉग के अंदर ln x माइनस ln y को क्या लिख सकते हैं? दिस इज नथिंग बट ln ऑफ x by y। तो सेम फॉर्मूला में लगाता हूं ln A0 माइनस ln A0 by 2, तो क्या हो जाएगा? A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? 2। तो इस फॉर्मूले से आपका फर्स्ट स्टेप से मेरा स्टेप आ गया था ln 2। क्लियर है भाई? ln x माइनस ln y होता है ln x by y। x की जगह A0 है, y की जगह A0 by 2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा ln 2। ln 2 की वैल्यू होती है 0.693, तो ये बचेगा 0.693 अपॉन k इज इक्वल टू t हाफ। तो ये हो गया हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इस हाफ लाइफ फॉर्मूले में कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं आ रहा है। सो विच बेसिकली मीन्स हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट, हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जबकि हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या थी?
T half was equal to A naught upon 2K. So for a zero order reaction, half-life was directly proportional to initial concentration. For a first order reaction, half-life is independent of initial concentration. तो हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ देख लिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. हमने हाफ लाइफ टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी देख लिया फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस सो दैट द एप्लीकेशन ऑफ दीज फॉर्मूलाज इज क्रिस्टल क्लियर. नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन has a rate constant of 1.15 into 10 to the power minus 3 per second. How long will 5 gram of the reactant take to reduce to 3 gram? और यहां पर कुछ log की वैल्यूज दे रखी है. Now, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्पेसिफाई नहीं भी करता तो भी हम रेट कांस्टेंट की यूनिट देखकर बोल सकते थे कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा. राइट? ठीक है. नाउ हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है विच इज 1.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 पर सेकेंड. हमें ए नॉट दिया हुआ है 5 ग्राम और एटी दिया है 3 ग्राम. ओके. तो सम ऑफ यू मे आस्क सर ए नॉट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सो इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, मोल पर लीटर. फेयर इनफ. नाउ जब भी हम कोई रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो किसी फ्लास्क में रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. एग्रीड? भाई किसी फ्लास्क में रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है. अगर गैसियस रिएक्शन है, अगर गैसियस रिएक्शन नहीं भी है, अगर जैसे लिक्विड फॉर्म में भी है तो उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है. ओके. वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड विल रिमेन कांस्टेंट. नाउ रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन? नहीं होगा. तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं हो रहा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. एग्रीड? तो किसी भी क्वेश्चन में अगर मास दिया है तो हम उसे यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. एग्रीड? तो अगर क्वेश्चन में हमें मास दिया है तो उसकी जगह हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम मास को यूज कर सकते हैं. वी कैन ऑलवेज यूज मास इन प्लेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन दीज क्वेश्चंस. सो देयरफॉर वी टेक A0 as 5 which is the initial mass and AT is equal to 3 और हमें टाइम निकालना है. ठीक है. अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है तो लेट्स राइट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ. इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है? log of A naught minus log of AT is equal to KT upon 2.303. अब मेरे को A naught पता है 5, AT पता है 3, K पता है 1.15 into 10 to the power minus 3. तो A की वेरिएबल बचा है T, which we can easily find out. तो वैल्यूज डाल देते हैं तो बच गया log 5 minus log 3 is equal to 1.15 into 10 to the power minus 3 T upon 2.303. इसको log 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, log 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है. इन वैल्यू को पुट कर दें और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एंड द आंसर विल्स 3.17 into 10 to the power minus 4 सेकेंड. ठीक है. ओके. नाउ लेट्स लुक एट second question. Time required for decomposition of a compound is 30 minutes. Time required for 50% decomposition of a compound is 30 minutes. Find the rate constant given that decomposition follows first order kinetics. तो मैं दिया कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसका टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% डिकम्पोजिशन 30 मिनट्स दिया है, यानी हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है. तो हाफ लाइफ है 30 मिनट्स, उसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. जरूरी नहीं था, हमारा आंसर मिनट्स के अंदर भी ले सकते थे, पर मिनट में भी, पर ठीक है हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया. हमें के निकालना है. हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के. टी हाफ की वैल्यू डाल के
और k के लिए हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3.85 into 10 to power minus 4 per second. Easy the question. So this question was direct application of the half-life time period formula for the first order reaction. Okay. Let's look at a graphical based question. अब इस क्वेश्चन में एक ग्राफ दे रखा है और you are expected to answer certain question. Now पहला क्वेश्चन है what is the order of reaction. इस ग्राफ को देखकर हमें बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है. जब हमने कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, तो हमने सेकंड ग्राफ देखा था दैट वाज ln कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, एंड उसी के अंदर हमने देखा था लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम. तो ये ग्राफ किसके बीच में है? लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लॉग ऑफ आर वर्सेस टाइम. और वो ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्ट्रेट लाइन होता है. So that basically means this graph is for a first order reaction. Okay. Since the given graph is between log of concentration and time and is a straight line, which is the case for a first order reaction, hence order of this reaction is 1. Clear है? अगर यही ग्राफ मेरे को concentration versus time के बीच में दिया होता तो मैं बोल देता जीरो ऑर्डर रिएक्शन. पर ये ग्राफ इसके बीच में लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम और स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. तो पहला पार्ट हो गया. ठीक है. अब दूसरा पार्ट देखते हैं. दूसरे पार्ट के अंदर में क्या दे रखा है? स्लोप दे रखी है इस ग्राफ, यानी इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप दे रखी है और हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट. तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था अगर लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो जो स्लोप होती है उस ग्राफ की दैट इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303. ठीक है. द स्लोप ऑफ लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज माइनस के अपॉन 2.303. तो मैं माइनस के अपॉन 2.303 को इक्वेट कर देता हूं स्लोप से, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है -2 × 10 to power -6, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके k की वैल्यू हो जाएगी विच इज 4.606 × 10 to power -6. क्लियर है? इंपॉर्टेंट थिंग, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. स्लोप ऑफ लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303. Okay, let's move to the next question now. Now let's look at another question. Now this is slightly interesting question as against the straightforward questions which we have done so far. Now in this question you are asked to prove that time required for 99% completion is twice the time required for completion of 90% of reaction for a first order reaction. मतलब जो टाइम हमें 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में लग रहा है वो डबल है जो उस टाइम से जो कि हमें 90% कंप्लीट होने के लिए लगता है. ठीक है. और इस क्वेश्चन में हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा. नाउ अगर 99% कंप्लीशन वाला केस लेते हैं तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि A0 100 है. ये हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी देखा था कि जब भी परसेंटेज टर्म में बात हो रही है तो हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को अज्यूम कर लेंगे 100. तो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है और रिएक्शन मेरा 99% कंप्लीट हो गया है तो रिएक्टेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन बाकी होगा? 100 माइनस 99 विच इज इक्वल टू 1. क्योंकि 99 रिएक्ट हो गया तो 1 ही बाकी रह गया. तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन भी मेरे को पता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी पता है. तो लेट्स से वी अज्यूम दैट टाइम टेकन इज x और मैं रेट कांस्टेंट को k मान लेता हूं. तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी, अगर मैं रेट लॉ में डालता हूं तो A0 की जगह 100 डालना और 80 की जगह 1. तो मेरी इक्वेशन हो गई log of 100 माइनस log of 1 इज इक्वल टू kx अपॉन 2.303. log of 100 कितना होता है? 2.
याद रखो ये log of 100 ये कितना होगा, ये होता है 2 और log of 1 कितना होता है, ये होता है 0। तो ये क्वेश्चन अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें log की वैल्यूज डाल देनी है। तो log की वैल्यूज डाल देंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 0, 2.303 को उधर ले गए तो x की वैल्यू आ गई 4.62 टाइम्स 2.303 अपॉन k इज इक्वल टू x। ठीक है, तो हमें टाइम निकल गया 99% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, कितना टाइम चाहिए वो हमें पता चल गया। अब सिमिलरली हम टाइम निकालते हैं 90% कंप्लीशन के लिए। ना इस केस में 80 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 90, क्योंकि रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है 90%। और हमने टाइम को y मान लिया। रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रेट कांस्टेंट तो सेम ही रहने वाला है। अगेन हम वैल्यू पुट कर देते हैं। log of 100 2 होता है, log of 10 1 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 2 माइनस 1 विच इज 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2.303 अपॉन k। तो ऑब्वियस है कि जो x है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ y, तो हेंस प्रूव्ड। आया समझ में भाई, 99% कंप्लीशन दिया हुआ है, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 100 माइनस 99 1। हमने वैल्यू डाली रेट लॉ में और t की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ k। फिर हमने 90% कंप्लीशन वाला केस लिया, उसमें भी वैल्यूज डाली और टाइम की वैल्यू निकाल ली अगेन इन टर्म्स ऑफ t, अगेन इन टर्म्स ऑफ k। और दोनों वैल्यू को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इट इज प्रूव्ड दैट x इज इक्वल टू 2 टाइम्स y। ठीक है, तो लॉजिकली प्रोसीड करोगे तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। दिस इज एन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। नाउ अनदर क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में क्या है, इट हैज बीन गिवन टू यू दैट A and B react to form some compound C और रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर किया है एट डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A and B। जैसे पहले केस में उन्होंने A का कॉन्सेंट्रेशन ले लिया 0.20, B का ले लिया 0.30 और रेट की एक इक्वेशन आ गई, रेट रिएक्शन की एक वैल्यू आ गई। फिर A का कॉन्सेंट्रेशन 0.2, B का 0.1 और फिर रेट ऑफ रिएक्शन की एक वैल्यू आ गई और सिमिलरली थर्ड केस दे रखा है। और आपसे पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A एंड B। ठीक, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप रेट लॉ को अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम करेंगे भैया, अज्यूम कर लेते हैं कि रेट लॉ है R इज इक्वल टू A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y, क्योंकि दो ही रिएक्टेंट है तो उन्हीं दो पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो मैं जनरलाइज रेट लॉ लिख दिया, R इज इक्वल टू A टू पावर X इंटू B टू पावर Y। अब मैं कोई दो ऐसे ऑब्जर्वेशन चूज करूंगा जिसमें एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेम रह रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अज्यूम करो कि अगर B का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, यानी B कांस्टेंट है, तो क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हो गया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर X। अरे भाई यही मतलब हुआ ना कि अगर मेरा B कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूं R इज प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर X। और अगर A का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा तो मैं बोल सकता हूं R इज प्रोपोर्शनल टू B टू पावर Y। ठीक है, और जब दो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उस केस में मैं लिख सकता हूं R1 by R2 इज इक्वल टू A1 टू द पावर X अपॉन A2 टू द पावर X, या R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू B1 टू द पावर Y अपॉन B2 टू द पावर Y। ठीक है, क्लियर है भाई? जब भी दो चीज डायरेक्टली वेरी करती हैं, अगर X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y तो मैं क्या लिख सकता हूं X1 अपॉन X2 इज इक्वल टू Y1 अपॉन Y2। सेम चीज मैंने यहां पर कर दी। तो मेरा फर्स्ट स्टेप, एक बार मैंने रेट लॉ लिख दिया, उसके बाद मेरा स्टेप होना चाहिए
कि दो ऐसे ऑब्जर्वेशन चूज करूं जिसके अंदर एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो इस केस में मैं चूज करता हूं ऑब्जर्वेशन 1 एंड 2। अगर ऑब्जर्वेशन 1 एंड 2 में देखें तो ए का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर भी 0.20, यहां पर भी 0.20 है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। सो वी कैन देयरफॉर से R1 upon R2 is equal to B1 to the power Y upon B2 to the power Y। ठीक है, तो मैं R1 और R2 की वैल्यू डाल देता हूं। R1 और R2 की वैल्यू दोनों केस में सेम है, तो वो डाल दी मैंने। B1 और B2 की वैल्यू डाल देता हूं, तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 3 टू द पावर Y। और 3 टू द पावर Y 1 कब होगा, जब Y की वैल्यू 0 होगी। क्लियर? तो इसका मतलब हो गया कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, 0 है। यानी बी का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, विच इज ऑब्वियसली द केस। क्लियर इतना? अब हम निकालेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। नाउ अब हम कोई भी दो ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं इस केस के अंदर। इस केस में हम कोई भी दो ऑब्जर्वेशन इसलिए ले सकते हैं कि बी का ऑर्डर 0 है, तो रेट लॉ का फॉर्म क्या हो गया, R इज इक्वल टू K टाइम्स A टू द पावर X। यानी R किसके प्रोपोर्शनल है, A टू द पावर X। Therefore R1 upon R2 will always be equal to A1 to the power X upon A2 to the power X, क्योंकि B का टर्म रेट लॉ में नहीं आ रहा है, बिकॉज B का ऑर्डर 0 है। तो हमने 1 और 3 चूज किया, फिर से हम R1 और R2 की वैल्यू डाल देते हैं। तो ये वैल्यू डाल गई 2.028 अपॉन इंटू 10 टू पावर माइनस 4 अपॉन 5.07 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, और कॉरस्पॉन्डिंगली हमने ए के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू डाल दी। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 4 और राइट हैंड साइड हो जाएगा 4 अपॉन 2 टू द पावर एक्स यानी 2 टू द पावर एक्स। ये हो गया 4 अपॉन 2 टू द पावर एक्स यानी 2 टू द पावर एक्स। ये कब होता है, जब x की वैल्यू 2 होती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a कितना हो गया, 2। सो रेट लॉ विल बी R इज इक्वल टू A टू द पावर 2। क्लियर है? तो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले जनरल रेट लॉ अज्यूम कर लें, फिर ऐसे ऑब्जर्वेशंस उठाएं जहां पर केवल एक ही रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रहा है। उस रिएक्टेंट का ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्टेंट के टर्म्स में निकाल लें, यानी उसका ऑर्डर निकाल लें उस रिएक्टेंट के टर्म में, और फिर सिमिलरली प्रोसीड करके बाकी रिएक्टेंट्स के लिए भी ऑर्डर निकाल लें। ओके? You will often come across this term in chemical kinetics, which is pseudo first order reaction. Now, word pseudo basically means false. So, a pseudo first order reaction is a false first order reaction. This basically means that reaction whose order is actually different than 1 but are made to behave as first order reaction by suitably altering the conditions of a reaction are called pseudo first order reactions. Meaning, the reaction is actually not a first order reaction. It may be a second order reaction or a third order reaction. But then we alter the conditions of reactions in such a way that for all practical purposes, the reaction behaves as a first order reaction. How is it done? Let's say we have a reaction where A plus B is giving me C. And the rate law for this reaction is R is equal to K times concentration of A into concentration of B. So this basically means that the rate of reaction depends upon both the concentration of A and B, and the overall order of reaction is actually 1 plus 1, which is 2. But if we take B in excess, that is the quantity of B is very large as compared to the quantity of A. Now as the reaction proceeds, both the quantity of A and B will reduce,
but in absolute term, the change in concentration of B vis-a-vis A would be almost negligible or insignificant, which basically means that in the rate law, we can take the concentration of B term as constant, which will effectively make the reaction a first order reaction. We will look at an example to make this point more clear. But as of now, remember that a non-first order reaction, that is a reaction which is higher than first order reaction, can be made to behave as a first order reaction by taking one of the reactants in very large quantity. Now let's look at an example to make sure that this concept is clear to us. The example is that of hydrolysis of ester. Now ester, when hydrolyzed, gives you carboxylic acid and ethanol. Now this is actually a second order reaction where the rate law is given by R is equal to K times the concentration of ester into concentration of water. So the rate of reaction depends both on the concentration of ester as well as water. Now the exponent of both ester and water is 1 in this equation or in this rate law. Therefore, the overall order of reaction is 2. But if we take water in very large quantity, its concentration does not change significantly as compared to concentration of ester, right? Because we have taken water in very large quantity, therefore, though the concentration of water will change, but vis-a-vis the concentration of ester, it will be almost negligible. So therefore, the reaction behaves as first order following the rate law R is equal to K times the concentration of ester. This is because we have taken the concentration of water as almost constant. And this is happening because water is present in very large quantity. So, now for all practical purposes, this reaction behaves as a first order reaction, and we can apply the integrated rate law which we have developed for a first order reaction to solve any question based on this reaction. So, if in a numerical you are given a reaction in which one of the reactants is taken in very large quantity, and typically this reactant is a solvent. For example, water over here is acting as a solvent. Now, in certain organic chemistry reaction, we may have alcohol as a solvent or carbon tetrachloride as a solvent. So, typically, solvent is taken in very large quantity. So, therefore, we can assume that the concentration of that will remain constant if given or specified in the problem. And therefore, we can apply the first order rate law which we have developed. So, the concept of pseudo first order reaction is clear to all of you? Okay? Great. Now we will look at a typical first order reaction where all the reactants and the products are present in gaseous state. Now we have learnt in earlier classes that for a gas, the partial pressure exerted by the gas is directly proportional to the number of moles present in given volume of container. Okay. So, wherever we are using concentration term or molarity, that can be replaced by partial pressure if you are talking about gases. So, if you are given an equation where all the reactant and the products are in gas phase, typically instead of specifying the concentration, what will be specified would be the partial pressure of gases.
So now we will look at how to write the rate law in terms of partial pressure of gases. Let the reaction be A gives me B plus C, where A, B and C all three are gases. Now let Pi denote the initial pressure of A. Now when the reaction starts or at time t is equal to 0, we only have A, B and C are absent. That means their concentration is 0. So their partial pressure is assumed to be 0. So initially the total pressure is the pressure exerted by the gas A, and we call this pressure as Pi. Let's say at time t is equal to t, where we are analyzing this reaction, Pt be the total pressure. Now at this time, this Pt, the total pressure, will be equal to the sum of partial pressure exerted by A plus partial pressure exerted by B and partial pressure exerted by C. Okay? So the total pressure at time t would be the sum of partial pressure of all the three gases. Now this is as per Dalton's law, which we have studied in class 11th. And let Pa denotes the partial pressure of gas A at time t. Okay, so these are the three variables: Pi, initial pressure of gas A; Pa, final pressure of gas A; and Pt be the total pressure at time t. Now the rate law can be written as log of Pi minus log of Pa equal to Kt upon 2.303. Now compare this thing with the integrated gas law, which we were writing in terms of molarity. What we were writing? Log of A0 minus log of At equal to Kt upon 2.303. A0 was initial concentration. So for gases, we can say initial pressure would be proportional to initial concentration. So that term has been replaced by Pi. At was the final concentration of reactant A. And for a gas, that will be proportional to its partial pressure, which is Pa. So At has been replaced by Pa. So this becomes your integrated rate law in terms of pressure. Now this is easier, but the problem arises because in most of the cases, instead of Pa being given, what will be given is the initial pressure and the total pressure at time t. And therefore we expect, or we would be required to know the integrated rate law in terms of Pi and Pt. क्लियर है? जब तक हम रेट लॉ इनिशियल प्रेशर ऑफ ए और फाइनल प्रेशर ऑफ ए के टर्म में लिख रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है. हमने सिंपली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को इनिशियल प्रेशर से रिप्लेस कर दिया और फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट को फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट से रिप्लेस कर दिया. बट जनरली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर हमें क्या दिया होगा? इनिशियल प्रेशर दिया होगा और टोटल फाइनल प्रेशर दिया हुआ होगा. तो अगर हमें टोटल फाइनल प्रेशर दिया हुआ है तो या तो हम फाइनल प्रेशर ऑफ ए निकाल लें पीटी और पीआई के टर्म में, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इस इक्वेशन को यूज कर पाएंगे. ओके, तो इस इक्वेशन को हम पीआई और पीटी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, दैट वी विल लुक एट इन नेक्स्ट स्लाइड. ओके, अब हम देखेंगे how we can write this expression in terms of initial pressure of A and total final pressure of all the gases given together. Okay? Okay. Now, as A decomposes to give B and C, its concentration will decrease. Now, if concentration of A decreases, it means partial pressure exerted by it will also decrease. And since concentration of B and C increases, partial pressure of B and C will also increase. Now we can easily say that if pressure of A decreases by X,
then the pressure of B and C will also increase by X. Why? Because रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री देखें तो A का 1 मोल रिएक्ट होकर B का 1 मोल और C का 1 मोल देता है, यानी 1 मोल of A on reaction gives 1 मोल of B and 1 मोल of C. So therefore जितने मोल A के रिएक्ट हो रहे हैं, we are getting the same number of moles of B and C. Therefore decrease in pressure of A will be equal to increase in pressure of B and increase in pressure of C. ठीक है, तो स्टोइकोमेट्री which we had learnt in class 11, again we will use the same concept. Initially at time t0 A का प्रेशर है Pi और B और C का concentration 0 है, तो उनका partial pressure is equal to 0. Let's say whatever moles of A reacts, because of which its partial pressure decreases by X. यानी X का partial pressure X से decrease हो रहा है, which implies B का partial pressure will increase by X and C का partial pressure will also increase by X. So which means at time T is equal to T, final pressure of A कितना हो जाएगा? Initial pressure Pi minus decrease in pressure यानी Pi minus X, और B का प्रेशर कितना हो जाएगा? 0 प्लस एक्स. C का प्रेशर कितना हो जाएगा? 0 प्लस एक्स. क्लियर है? स्टोइकोमेट्री जो चीज हम मोल्स के टर्म में करते थे, सेम थिंग वी हैव डन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. कॉन्सेप्ट इज सेम. इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोल्स वी आर यूजिंग पार्शियल प्रेशर. नाउ टोटल प्रेशर as per Dalton's law is equal to sum of partial pressure exerted by all the gases. So Pt will be equal to Pi minus X plus X which is equal to Pi plus X. तो Pi को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, so we will get Pt minus Pi is equal to X. अब फाइनल प्रेशर ऑफ A Pa किसके बराबर हो जाएगा? Pi minus X. तो X की जगह में क्या डाल सकता हूं? X की जगह में डाल सकता हूं Pt minus Pi. तो वो अगर मैं डाल दूंगा तो Pa मिल जाएगा मेरे को 2Pi minus Pt. तो अब मैं रेट लॉ को लिख सकता हूं, जो कि रेट लॉ था log Pi minus log Pa लेफ्ट हैंड साइड में. अब वो क्या हो जाएगा? log Pi minus log of 2Pi minus Pt. ठीक है? So this is how we solve numericals for gaseous reaction, जहां पर पार्शियल प्रेशर के टर्म में सारे कॉन्सेंट्रेशंस दिए हुए होंगे. ठीक है, सबसे पहले आप लिख लो रेट लॉ को इन टर्म्स ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए एंड फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, और फिर फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए को एक्सप्रेस कर दो इन टर्म्स ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल टोटल प्रेशर using stoichiometry. Okay, great. So with this I come to the end of this particular lecture, and also we have completed the mathematics or the integrated rate law for both zero order and first order reaction. So before I say goodbye, let's summarize few important things. First of all, the integrated rate law for zero order reaction, we learned that it's given by A0 minus AT is equal to K times T, where K is the rate constant, A0 is the initial concentration, AT is the final concentration, and T is time. The integrated rate law for the first order reaction is log of A0 minus log of AT is equal to KT upon 2.303. तो इन दो रेट लॉ को यूज करके ज्यादातर न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं. After that we looked at the formula for the half life time period for both zero order and first order. Zero order के लिए था half life A0 upon 2K, तो clearly half life is directly proportional to initial concentration, or half life is proportional to concentration of reactant. For the first order reaction, half life was independent of concentration of reactant and is given by 0.693 upon K. Finally, we looked at pseudo first order reaction, which are reactions which are basically not first order but are made to behave like a first order reaction by
suitably adjusting the conditions of reaction. And if it's a pseudo first order reaction, we can apply integrated rate law for a first order reaction and solve the questions. And finally, we looked at the gaseous reaction, how to express gas rate law in terms of initial pressure and the final pressure. So hopefully all these concepts are clear to you. If these concepts are clear, then most of the numericals and the conceptual based question you should be able to do easily. I sincerely hope that you're enjoying this topic of chemical kinetics. It's a very interesting topic, and as I mentioned again and again, it's one of the most scoring topic of class 12th chemistry. So keep studying, and in case there are any doubts, please message me. Goodbye.